Hello dear students, good morning to all of you. Last time we have started our syllabus for 11th class, and last time we were discussing about basic mathematical tools. As I told you that mathematics is the language of physics, and if we want to understand the concept of physics, if we want to describe the principle of physics, if we want to apply the principle of physics, for that it is necessary to have good knowledge of basic mathematical tools. Without having knowledge of basic mathematics, we cannot simplify the problems of physics, we cannot solve the numerical problems of physics. Therefore, it is necessary to study basic mathematical tools before starting first chapter of physics. So that is why we started our discussion with basic mathematical tools. I told you that in mathematics there are certain important mathematical tools, like trigonometry is one of the important mathematical tools. You might have used the trigonometry and basic geometry while making calculation in a motion chapter, in optics. In 10th class you might have studied about that. In 11th class और 12th class के अंदर there are some more important मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दे आर very very important mathematical tools. Without having the basic knowledge of differentiation and integration, we cannot simplify, we cannot solve the derivation of physics. उसको अगर derivation को करना है तो इनका knowledge बहुत जरूरी है. देखिए, हम केवल उतनी ही मैथमेटिक्स को टच कर रहे हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है. फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के डेरिवेशन में जो आपका यूज आएगा, जितना उतनी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे. लेकिन इनका नॉलेज बहुत जरूरी है. स्पेशली मैंने आपको बताया था कि स्पेशली वो लोग जो आगे कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए, और लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ में अपना डिस्कशन शुरू किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर हायर एंगल. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 135 degree, we want to calculate the value of cos 300 degree, tan 720 degree, कोई भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए we need to follow 4 steps, and I also told you about those 4 steps, and by following those easy 4 steps you can calculate the value of trigonometric ratio for any higher angle. And I also introduce you about the quadrant system. quadrant system के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो राइट साइड में टॉप पे होगा, वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. बाय कन्वेंशन इट हैज बीन चूजन दिस सिस्टम. और फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं, ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं. आज हम एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है. मैं आपको इसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है डिफरेंशिएशन का, इसका मीनिंग क्या होता है, उसकी फील दूंगा पूरा आपको. और इससे पहले लास्ट टाइम का जो हमारा डिस्कशन था उससे रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स है जो मैं डिस्कस करूंगा, जो अपने आगे वाले डेरिवेशंस में भी यूज में आएंगे. तो पहले उन एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विद डिफरेंशिएशन. ओके, सपोज कई बार इस टाइप से यूज में आता है. देखिए, एंगल, और आपने 10th क्लास के अंदर भी जो आपका एंगल है उसके लिए 2 टाइप के यूनिट्स चलते हैं, डिग्री और रेडियन. वी नो वेरी वेल दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, and this is the conversion factor between degree and radian. If I divide both the sides by 2, then I will have 90 would be equal to pi by 2 radian. It means 90 degree is equal to pi by 2 radian. Or if I divide both the side by 4, then I will have 45 degree would be equal to pi by 4. If I want divide it by 3, then I will have 60 degree is equal to pi by 3 radian. So sometimes angle is also used in radians, so we must have idea between degree and radian units of angle. Okay, अब मान लीजिए कि कई बार आगे अपन डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशंस आती है. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. सपोज आपके पास दे रखा है कि साइन दिस इज पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा. नाउ कैलकुलेट दिस. इस क्वाड्रेंट सिस्टम को ही अपन यूज करेंगे, 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा. देखिए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 मीन्स 90. दिस इज 90. I can write this is 1 into 90 plus theta.
4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, चेंज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। ये एंगल जो है, ये गिवन एंगल कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं साइन को चेंज करूंगा। देखिए 190 प्लस थीटा, 190 यहां तक ये 190 कंप्लीट हो गया, प्लस मींस दिस एंगल it lies in second quadrant. In second quadrant sin theta is positive, therefore sin of sin will not change. इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप्स आपका था कि इफ n is odd number then change the value of trigonometric ratio. Sin is converted into cos theta. In this case n is an odd number, therefore sin will be converted into cos. Okay, and finally write the theta as angle of trigonometric ratio. So sin pi by 2 plus theta, it has come equal to cos theta. So this is one important formulation that we have made over here. The sin pi by 2 plus theta, this is equal to cos theta. ये इस टाइप से अपन ने जो 4 स्टेप्स है उसको फॉलो करके, तो आगे वाले अपन जो डेरिवेशंस वगैरह करेंगे उसमें भी कई बार sin pi by 2 plus थीटा लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आपको cos थीटा मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस वही 4 स्टेप्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, उसको अलग से कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप उसको अगर अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके बेस सॉल्व करेंगे, तो 4 स्टेप्स आपके टिप्स पे होंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास ये होता है कि साइन दिस इज पाई प्लस थीटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन पाई प्लस थीटा, आई एम टेलिंग यू दिस, साइन पाई मीन्स 180, दिस इज 180 प्लस थीटा, बट वी हैव टू राइट, इट कैन बी रिटन एज 2 into 90, दिस इज 290 प्लस थीटा। अब आपका वही 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, n90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में मैं इसको लिख चुका हूं इस एंगल को। नाउ आई विल फॉलो दो सिंपल 4 स्टेप्स। फर्स्ट, चेंज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल? 290 प्लस थीटा, 190 290 and plus theta means this angle lies in third quadrant. In third quadrant only tan and cot are positive, remaining trigonometric ratios are negative. Sine will be negative in third quadrant, therefore since sine is negative in third quadrant, therefore I am putting minus sign over here. This is minus. Now I have changed the sign of trigonometric ratio. उसका साइन को मैंने चेंज कर लिया, नेगेटिव होगा। ठीक, अब वैल्यू को देखिए, क्या ये n यहाँ पे ऑड है या इवन? n is even number, therefore the value of trigonometric ratio will not change, sine will remain sine. Sine को sine लिख दिया and this angle theta is written over here. It means we can say sin pi plus theta is equal to minus sin theta. ये डेरिवेशन में अपन डायरेक्टली आगे यूज करेंगे, तब आपको लगेगा भाई ये sin pi plus theta की जो वैल्यू है वो माइनस sin theta, इसको मैं कई बार लिखूंगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, दिस इज cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, it can be written as cos 1 into 90 minus theta. Okay, quadrant, this is 190 minus, if I say 190 plus मतलब से अगले वाले क्वाड्रेंट में आ गया, 190 माइनस यानी पीछे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है। ओके, cos रिमेन्स पॉजिटिव, तो साइन तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब वैल्यू को चेंज कीजिए, इवन है या ऑड है? ये ऑड है, इसलिए cos इज कन्वर्टेड इनटू sin, सो दिस इज sin और फाइनल दिस एंगल इज रिटन ओवर हियर sin थीटा, मींस आई कैन से cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा। सो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा। आप कोई भी वैल्यू आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास कई सारी वैल्यूज हो सकती है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स बताता हूं कि मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है कि आपका sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंक्लूजन हैं जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिए हैं। और कुछ वैल्यूज है, अगर आपको एक बार प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
ये अपने आगे जो भी फिजिक्स के डेरिवेशन वगैरह करेंगे। देखिए ये मैं मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये फिजिक्स के लिए जितना जो रिक्वायर्ड है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके बस यहीं पे जो है गाड़ी अटक जाती है, आदमी आगे फिजिक्स के समझ में नहीं आती। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आगे जाके कई बार इक्वेशन, फिजिक्स केवल 2 लाइन की होती है, डेरिवेशन के अंदर आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया 2 लाइन का, पीछे 8-10 लाइन सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, बड़े बड़े डेरिवेशन है, कुछ भी है, न्यूमेरिकल्स है, सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी, आपकी अलजेब्रा यूज होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार फैक्टराइजेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री पूरे की पूरे आपको साइन कॉस सब कुछ यही लगेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको ये पूरी की पूरी आप फिजिक्स की बुक उठा के देखेंगे, उसके अंदर आपको 70-5% जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी वालों के लिए आप ये मत सोचिए कि भैया हमने बायोलॉजी लिए तो किस टाइप से है, बहुत इजी है, बहुत इजी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है इसका मतलब कहीं कहीं आपकी जो टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाई, आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल नहीं पाया, आपको एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर नहीं मिल पाया, इसलिए शुरू से आपके दिमाग में हो सकता है कि थोड़ा मैथ्स को लेकर डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो हमने ये डिस्कशन भी इसलिए शुरू किया था कि आपको आगे फिजिक्स को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिक्स इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कुछ आपने पढ़ रखा है 10th क्लास तक, कुछ और चीजें भी पढ़ रखी है। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, ये भी आपने एक्सप्रेशन कई बार मैं इसको यूज करूंगा, जहां कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह मैं 1 यूज करूंगा, ये बात आगे जाके यूज में आएगा। या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपने पढ़ा होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बेसिक्स है, ये आपने 10th क्लास के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद में फिर अपना मेन जो एम है डिफरेंशिएशन उसको अपन शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप अच्छे से लिख लीजिए। ये फॉर्मूला इसकी ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, केवल इसको ऊपर से फॉर्मूला जितना अपना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो पढ़ रहे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसका कहाँ यूज आता है कि कई बार मान लीजिए कि आपके पास साइन 75 डिग्री आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो साइन 75 की डायरेक्टली अपने के पास नॉन तो होती नहीं है, साइन 45 की वैल्यू मैं जानता हूं, 30 की वैल्यू जानता हूं, तो 75 को अगर मैं स्प्लिट कर दूं 45 प्लस 30 लिख दूं, उस कंडीशन में मैं इस फॉर्मूले को यूज करके साइन 75 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। हाउ, लेट अस सी दिस साइन 75 degree, it can be written as sine 45 plus 30. Okay, now this is, it has come in this form sine a plus b, and sine a plus b it can be written as sine a cos b plus cos a sin b. What is a? A is 45, b is 30. साइन कॉस ए साइन बी, दिस इज ए इज 45, बी इज 30, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए। साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 and this is 1 and LCM is 2√2 and this would be √3 plus 1। ये सिंपल फॉर्मूले को यूज करके, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन कोई मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना, कई बार ये बहुत बेसिक चीज़ें यूज में आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, मैं वही फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी फालतू के फॉर्मूले मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले को यूज करके एक आगे एक इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला बनता है जो कि आपके इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज में आएगा। इफ a and b both are equal to theta, in that case sine it becomes sine theta plus theta and this would be equal to sine theta. In the place of b I will also write the theta, in the place of a I am writing theta, in the place of b I am also writing theta. It becomes theta plus theta means sine 2 theta, so sine 2 theta is equal to sine theta cos theta, sine theta cos theta, it becomes 2 times sin theta cos theta। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज आएगा डेरिवेशंस में कि sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बहुत बार अपन यूज में लेंगे। अब मान लीजिए सेम पैटर्न को फॉलो करिए, देखिए अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो ये इसमें एंगल आधा आधा हो गया थीटा थीटा। इफ आई राइट साइन थीटा तो इट कैन बी रिटन एज 2 साइन, एंगल को ऑफ कर लीजिए, थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई 2। तो ये कई बार अपन यूज में लेंगे डेरिवेशंस के अंदर। तो ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ब्लॉक बना के अच्छे से नोट करिए, ये कई बार यूज में आएगा। मैं केवल वही फॉर्मूले बता रहा हूं जो अपने फिजिक्स में यूज में आएंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक आपका जो फॉर्मूला है वो कॉस ए प्लस बी का यूज में आता है, कॉस ए प्लस बी, एंड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए इस फॉर्मूले को अपने को जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, सिमिलरली कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी बहुत बार यूज में आएगा। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी, इफ आई पुट ए एंड बी बोथ इक्वल टू थीटा, देन दिस बिकम्स कॉस theta plus theta, and this would be equal to what? In the place of A I'm writing theta, in the place of B I'm also writing theta, minus sin theta and sin theta. Okay, and if I simplify this, theta plus theta, it becomes cos 2 theta. So cos 2 theta is equal to what? This is cos into cos theta, it becomes cos square theta, minus sin theta into sin theta, it becomes sin square theta. ये important formula है cos 2 theta का, बहुत बार यूज में आएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक और इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले से आगे अपन cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले और यूज करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अपन देख लेते हैं। वी नो वेरी वेल दैट cos स्क्वायर थीटा plus sin square theta is equal to 1. Okay, so cos square theta would be equal to what? If sin square theta is transferred to right hand side, it becomes 1 minus sin square theta. It means in the place of cos square theta I can write 1 minus sin square theta. तो इसी फॉर्मूले में मैं देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos और sin दोनों के टर्म में है। If I want to derive the formula of cos theta only in terms of sin, तो उसको किस टाइप से लिख सकते हैं? देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 minus sin स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करता हूँ इसमें, तो what does it become? Cos 2 theta is equal to, in the place of cos square theta I am writing 1 minus sin square theta, in the place of minus there is already minus, in the place of sin square theta it is already sin square theta, minus sin square theta minus sin square theta minus 2 sin square theta, or I can write cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसको आगे जाके इसका एक और फॉर्म है जो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज में आएगा, इसको नोट करते रहिए। ये 2 sin स्क्वायर थीटा यहां से आपके पास में, ये 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं, cos 2 थीटा को उधर ले जाता हूं, तो क्या देखिए वैल्यू बन जाएगी 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इतनी सारी मैथमेटिक्स जिनकी मैथ्स वीक होगी या 10 तक जिन्होंने मैथ्स अच्छी नहीं है जिनकी, मान लीजिए, तो उनको ये सब कुछ मैथमेटिक्स देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि भाई ये चीजें हमारे समझ में तो नहीं आ रही है। देखिए सबसे पहली मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ क्लियर कर ली है कि अगर आपका जो एम है कि यार हम चीज़ों को हमको डिटेल में पढ़ना है, फिजिक्स को हमको डिटेल में पढ़ना है, हमको फिजिक्स का कंपटीशन है, नीट और जेई क्लियर करना है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, बहुत नेसेसिटी है इन चीज़ों की। अगर अपन बहुत एवरेज के भाई अपने को तो केवल एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ा लो, एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा दो, जैसे डिस्टेंस जो आपका वेलोसिटी जैसे स्पीड आप निकालते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू रखी, टाइम की वैल्यू रखी और वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, वो बहुत ईजी। ये आप पे डिपेंड करेगा कि अपन किस लेवल पे चीजों को पढ़ना चाहते हैं। अगर अपन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये रिक्वायर्ड है। और कुछ लोग, मैं उस अप्रोच को लेके भी साथ में चल रहा हूं, कुछ लोग मान लीजिए कि बहुत एवरेज है, तो हो सकता है कि उनको ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी, उनको इस जो है फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून होने में, इस ट्यूनिंग होने में कई बार जो है सिग्नल आ रहे होते हैं और अपन अपना जो रेडियो स्टेशन है उस सिग्नल को कैचअप नहीं कर पाता है, क्योंकि अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो पाती है, प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं हो पाती है, तो चैनल को ट्यून करना पड़ता है। तो आपकी हो सकता है ट्यूनिंग अभी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपका जो उस पर डिपेंड करेगा, आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, 10th तक आपने किस टाइप से पढ़ाने की जो आपको पढ़ाया गया उसकी अप्रोच क्या रही है उन चीजों की, उस पर सारी चीज डिपेंड करेगी। तो ये सारी की सारी जो मैं चीजें बता रहा हूं
उन लोगों के लिए हैं जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप बहुत बेसिक से ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है हाँ ये चीजें यूज में आएगी। डेरिवेशन में कहीं कहीं ये चीजें मैं डायरेक्ट इस टाइप से यूज लिखूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कई बार यूज में आएगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डेरिवेशन वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं कि यार अपने को तो कैसे करके फिजिक्स को पास करना है, अपन छोटी मोटी डेफिनेशन देख लेते हैं या छोटा मोटा कोई एक डायग्राम बना लेंगे, आधे नंबर इसमें मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप से। उनके लिए अप्रोच अलग होगी। देखिए ये अप्रोच डिपेंड करेगी कि हमारा लेवल क्या है और हम किस लेवल तक चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली इस टाइप से मैंने डायरेक्ट बताया है। इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला सीधा आपको अभी लर्न करना है, इसकी ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़नी है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2, ये भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको मैं कई बार यूज करूंगा इंटीग्रेशन के अंदर। आप 11th 12th दोनों में ये साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ होगा, उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। फिर आप वहां पूछेंगे भाई ये कहां से आया, तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक, एक और कॉस 2 थीटा का जो है इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर कॉस 2 थीटा जो है उसको मैं केवल और केवल कॉस के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो किस टाइप से लिख सकता हूं उसको देखिए। जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर जो थीटा है इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर हियर, सो इट बिकम्स cos 2 theta is equal to, in the place of cos square theta I am writing cos square theta, in the place of minus I am writing minus, in the place of sin square theta I am writing 1 minus cos square theta. Further we simplify this, cos 2 theta is equal to, this is cos square theta, this minus sign is multiplied inside the bracket, it becomes minus, minus minus it becomes plus cos square theta. Or I can write cos 2 theta is equal to, this is cos square theta and cos square theta, it becomes 2 cos square theta minus 1. Okay, 2 cos square theta minus 1. This minus is transferred to left hand side, then what we will have, 2 cos square theta would be equal to 1 plus cos 2 theta, and cos square theta would be equal to 1 plus cos 2 theta by 2. ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो अपन डेरिवेशंस वगैरह में यूज में लेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये बेसिक्स इतना ही था। इतनी चीजें अगर आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको बेसिक जो फॉर्मूले अपन ने बताए हैं साइन 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, और ये जो 4 स्टेप्स है, ये बस इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, अभी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिफरेंशिएशन ले लेंगे क्योंकि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है। फिर अपन एक इंटीग्रेशन का 3-4 लेक्चर के अंदर अपन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसको शुरू करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक, एक लाइक का आपके पास यहाँ पे बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर इन लास्ट लेक्चर, आप उस पर जो है कोई प्रॉब्लम है तो अपनी भेज दीजिए, अपन उस पर सॉल्व कर लेंगे। फिर अपनी ऑफलाइन जो क्लासेज जो एक्चुअल फील आता है वो ऑफलाइन क्लास में आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स।